Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Dear students, in the previous lecture we have discussed about the equality of several means, and in today's lecture it will be a different lecture, because so far we have not explained something about the relationship between variables. We have handled certain variables, but we did not found any relationship between variables. So in this lecture, in the start I have shown you a slide about how the things work, how we will proceed towards the different topics of the statistics, and today we will discuss about how the relationship between variables exists. And this is basically a descriptive statistics, and in start I should have do something like that, but today I will discuss here, and we will also do about the testing of hypothesis about different parameters of regression. So this is a basically concept of simple linear regression, and in this linear regression concept you can see on your slide that the many problems in engineering, management, health sciences and other sciences involve exploring the relationship between two or more than two variables. So we want to see the relationship between variables. Suppose if you take an example from biosciences, or you can take example from health sciences, there may be certain cases that we have to find the relationship between blood pressure and age, blood pressure and cholesterol level, and there are certain cases the engineer might have that the temperature and the process under control. You can see here the yield of a product is related to temperature. Similarly, you can take example from agriculture side that the water level of different water level and the yield of rice. Okay, water level and yield of rice, because yield of rice depends upon the water level. If you increase the water level, you will see that the yield of rice increases. So it means there is a relationship between yield of rice and water level. So in this particular problem we will discuss about the relationship between variables. So we should have some models. That particular model should be to find out the relationship between variables. So in this case I have given some examples here. You can see that for example, height and weight, you can find out the relationship between height and weight. You can also find the relationship between number of hours of study and grade CGPA. As you know that if the hours of study increases, the CGPA increases. It means there is a relationship between these two variables. So if you have seen these examples, you will see that there are certain there may be some variable that is dependent upon the other variable. You can take the example here. If you see that the hours of study depends upon GPA depends upon the hours of study. Similarly, you can see that the age is an independent variable, whereas blood pressure depends upon age. As the age increases, there are chances of blood pressure. Similarly, you can see the water level and yield of a rice. It means yield of a rice depends upon water level. Here we have one dependent variable and one independent variable. Okay, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे आपको बताता चलूं, यील्ड ऑफ ए राइस. तो यील्ड ऑफ राइस जो है वो डिपेंड कर रही है वाटर लेवल के ऊपर. आपने देखा होगा खेतों में पानी खड़ा होता है, खास करके चावल की जो फसल आपने देखी है साइड पे, अगर आप जाएं शेखपुरा वाली साइड पर तो आपने देखा होगा कि फसलों में अक्सर पानी खड़ा होता है. तो जितना वाटर लेवल आप इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ही यील्ड अच्छी होती है. तो इससे मुराद ये है कि ये जो वेरिएबल है दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये जो वाटर लेवल है दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. वी कैन फिक्स इट. इट इज आल्सो कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल. इट इज आल्सो कॉल्ड अ फिक्स्ड वेरिएबल. It is also called a response variable.
ठीक है। तो ये वैल्यूज जो होती हैं ये हम अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो उसमें से जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वी कांट से अबाउट दैट। तो वो हमने इनके दरमियान एक रिलेशनशिप फाइंड करना होता है। वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। तो द नेचर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सच वेरिएबल्स मे बी एक्सप्लेन्ड बाय रिग्रेशन। तो ये जो नेचर है एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप एंड कोरिलेशन, सॉरी, the nature of the particular relationship between two variables is explained by the regression, whereas the strength of association between two variables is explained by the correlation. The correlation will be discussed in the next lecture. Here we will discuss about the regression. तो regression के अंदर क्या है? We have to find the nature of relationship between two variables. So introduction to regression analysis is used to predict, बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है इसका जो मेन मकसद है वो क्या है? टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अगर आपके पास एक वैल्यूज एक मॉडल आ गया, यू कैन प्रिडिक्ट, यू कैन सेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड यू कैन गेट द अबाउट फ्यूचर वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आप नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी और सीजीपीए के दरमियान अगर आप रिलेशनशिप फाइंड कर लिया तो नाउ यू कैन फाइंड आउट कि अगर आप इतने घंटे पढ़ेंगे तो इतने आपकी सीजीपीए आनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह आप देखें कि जो मिड टर्म्स तक एग्ज़ाम है, अगर हमारे पास एक डाटा हो जो मिड टर्म प्रीवियस एग्ज़ाम और फ्यूचर के बारे में एक डाटा हो जिसमें फाइनल एग्ज़ाम के दरमियान अगर हम रिलेशनशिप फाइंड कर लें कि हम प्रीवियस एग्जाम मिड टर्म तक जितने पेपर्स हो चुके हैं उसका और फाइनल्स के दरमियान जो है वो दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक फाइनल जो पेपर है वो डिपेंड कर रहे हैं प्रीवियस जो आपका रिकॉर्ड है उसके ऊपर। तो अगर आप उसके दरमियान एक रिलेशनशिप फाइंड कर लें देन यू कैन प्रिडिक्ट मे बी सम ऑफ योर स्टूडेंट इज नॉट एब्सेंट फ्रॉम द फाइनल टेस्ट, ही कुड नॉट अपीयर इन द टेस्ट, सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर के फ्यूचर में वो कितने मार्क्स ले सकता था। ठीक है, तो इसमें भी मैंने यहाँ पे बयान करता चलूँ कि दो पर्पसेस हैं बेसिकली रिग्रेशन के, टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा, वर्ड यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और वेरिएबल्स साथ कोटेशन में एस भी लिखा हुआ है। यहाँ पर इट मीन्स देयर कैन बी सर्टन अदर वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आल्सो। एक वेरिएबल भी हो सकता है और मैनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल विच वी विश टू एक्सप्लेन is called dependent variable, and independent variable also called explanatory variable, the variable used to explain the dependent variable। ठीक है, तो जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी है राइस, यील्ड ऑफ राइस और वाटर लेवल। तो वाटर लेवल अपनी मर्जी से आप एडजस्ट कर रहे हो, इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेयर एज यील्ड ऑफ राइस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह एज इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ब्लड प्रेशर जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ब्लड प्रेशर इज बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक रिलेशनशिप हम इफ वी आर एबल टू फाउंड अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स वी कैन प्रिडिक्ट इन फ्यूचर कि अगर आदमी की एज इतनी होगी तो देयर आर द चांसेस ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली टाइप्स ऑफ मॉडल विच वी यूज इन रिग्रेशन। Regression model basically it's simple and multiple. In case of simple variable we have only one explanatory or independent variable। ठीक है, जब सिंपल रिग्रेशन की हम बात करते हैं इससे मुराद ये है कि हमारे पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक ही होगा। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैन बी वन और मोर। तो इन केस ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, 2 plus explanatory variables, you can see on the slide right here the multiple regression, we call it a multiple regression। ठीक है, तो मल्टीपल रिग्रेशन में आप देखिए क्या हो रहा है कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर 2 और मोर। जैसे आप देखें कि आप सपोज यील्ड ऑफ राइस को देखना चाह रहे हो तो यील्ड ऑफ राइस के अंदर अगर आप फर्टिलाइजर को भी शामिल कर लो तो इस मीन यील्ड ऑफ राइस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और वाटर लेवल एंड फर्टिलाइजर बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। नाउ इफ यू आर एबल टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन सच वेरिएबल्स वी यूज अ मॉडल दैट इज कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल।
ठीक है, तो आज हमारे इस कोर्स के अंदर हम मोस्टली जो स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। जो सिंपल में हम क्या करते हैं, 8 इंडिपेंडेंट और 8 डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको फाइंड करते हैं। Now the relationship can be linear and it can be also non-linear, and similarly for multiple case there will be linear and non-linear. Here are the few examples you can see here. Okay, what is the linear relationship? Positive linear. What does mean positive? Positive means if one variable increases, the other also increases. ठीक है, अगर एक वेरिएबल को आप बढ़ा रहे हैं, you increase in the health coverage, you increase in the health coverage, but this is an example of negative correlation. If you increase one variable, the other variable also increases. If you increase the water level, the yield of a rice also increases. It means there is a positive relationship between these two variables. So linear means they move together in one direction. ठीक है, तो you can see here in the first figure, positive linear relationship. If one variable is increasing, the dependent variable is also increasing in the same way, in the same direction, in a single line, in a straight line. So that is why we call it as a linear relationship between variables. Positive because one is increasing, other is also increasing. Now in the next slide, in the next figure, you can see there is a non-linear relationship because it is not linear. You can see this is not a straight line. If these points are along the straight line, then it will be called a linear relationship. Now in case of negative relationship, you can see here in the third figure that one variable is increasing and other is decreasing. Just you can take an example of, if you increase the health coverage, the frequency of deaths will decrease. You are increasing one variable, other variable is decreasing. So this is an example of negative linear relationship. Then you can see in the last figure there is no relationship between these two variables. Here they are all dispersed points. ठीक है, आप इसमें कोई नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा रिलेशनशिप होगा, लीनियर होगा, नॉन लीनियर होगा, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर डिस्पर्स. दिस इज बेसिकली दीज फिगर्स यू हैव सीन हियर, दिस वी कॉल्ड इट इज अ स्कैटर डायग्राम. स्कैटर डायग्राम में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम स्कैटर डायग्राम के अंदर x और y को प्लॉट कर देते हैं. सपोज हमारे पास x की वैल्यू 60 है, y की वैल्यू 101 है, तो हम x और y के ऊपर डिफरेंट स्केल्स लेकर, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट पेयर ऑफ वैल्यूज है. ठीक है, तो ये जो जितना डाटा है हमारे पास आएगा, इट विल बी कॉल्ड बाइवेरिएट डाटा. ठीक है, जैसे कि हमने पेयर टी टेस्ट में पढ़ा था. पेयर टी टेस्ट में क्या था, that was the one observation was taken and then after some time the second observation was also taken. तो same person was used twice. तो same is the case here. तो बाइवेरिएट डाटा में क्या होता है कि हम एक ही आदमी के ऊपर ये पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ली रही हैं. सपोज अगर हाइट और वेट का डाटा है, तो इस मींस कि हाइट और वेट, जो मैं पहला सिंगल आदमी उसका हाइट लिया, उसी का वेट लिया, तो वो पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगा. ठीक है, तो नो रिलेशनशिप में आप देख रहे हैं, इस मींस कि मैंने जो स्कैटर डायग्राम की बात की, तो इससे मुराद ये है कि आपने तमाम ऑब्जर्वेशंस को प्लॉट कर दिया ऑन एक्स वाली साइड पर और वाई वाली वैल्यू को. मतलब सपोज पहला पेयर है, उसकी हाइट 60 इंचेस है, उसका वेट 110 पाउंड है, या 110 पाउंड ही सही है, केजी में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, 110 केजी तो आउट ऑफ सिटी. तो 110 अगर उसका 60 वेट है, इट मींस एक्स एक्सिस के ऊपर आपने 60 देखना है, कहाँ पे लाइट आ रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर 110 स्केल डिफाइन करने के बाद अब आपने डॉट लगा देना वहाँ पे जाके. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू में भी 62 है और उसका जो वेट है वो 120 पाउंड है, तो 120 और 62 के अगेंस्ट एक डॉट लगा दें. द वेरियस नंबर ऑफ डॉट्स दैट में टर्न अप, तो ये जो डायग्राम बनती है इसको हम बोलते हैं स्कैटर डायग्राम. ठीक है, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में if you have only one independent variable and one dependent variable, then the simple model is right here. Y is equal to beta naught plus beta 1 x plus epsilon. This is basically an error term, a random term, error term we call it, which is referred to as simple linear regression model. We would be interested in estimating beta naught and beta 1 from the data we collect. ठीक है, this model is basically about population. Understand? If the random error term is not here, you can take the example of from physics side. If you have some physicians, some of you
or from physics side, you can take the example that E is equal to mc square. In physics we use E, energy, is equal to mass into c square. It means when you put m and c square, it will give you the same value. Nothing will be changed. If you can find the relationship between, you can fit a model between centigrade and Fahrenheit temperature, you will also see that when you will put the value of centigrade, you can find out the value of Fahrenheit temperature. Here it is no random term is involved here. Okay, but when that model is basically called deterministic model. That models are called deterministic model, because always when you put the value of dependent or independent variable, you will get the same value. There is no random error involved. But when we put here this value of this is called random error, then it will become a simple linear regression model. We call it a simple linear regression model. So in this simple linear regression, we call simple because we have only one independent variable. If we have many independent variables, then we call this model as multiple regression model. So this is the model. The problem is we have to estimate these beta 1 and beta 2. ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जब हमने पैरामीटर और स्टैटिस्टिक की बात की, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात की, तो म्यू की टेस्टिंग हम करते थे. टेस्टिंग हम म्यू की कर रहे हैं, यूज हम किस को कर रहे थे, एक्स बार को. टेस्टिंग हम कर रहे थे वेरिएंसेस की सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की, और यूज हम किस को कर रहे हैं, स्मॉल s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर को. ठीक है, तो ये चीजें अपने ध्यान में रखिए. तो दीज आर द टू पैरामीटर्स ऑफ दिस regression model, बीटा नॉट एंड बीटा 1. So here I have explained more what is y, we denote the dependent variable with y, we denote the independent variable with x, and epsilon, the random error term or residual, we call it a residual, the random error component. And what is beta naught? Beta naught is intercept. I will show in the later slide where beta naught stands, and about beta naught. And what is beta 1? This is basically slope of the coefficient. ठीक है, you know slope means angle. ठीक है, two lines के दरमियान कितना एंगल हो, that is called a slope of that particular line. So beta 1 is basically slope of coefficient. We also call it a regression coefficient. It is not written here. We call it a regression coefficient. X is an independent variable, and this is basically population regression model, in this model we are able, or we are going to be able to discuss about the relationship between variables. So the relationship between variables is found by this model. So if you look at this figure here, this is beta naught. Beta naught is, as I have mentioned earlier, that beta naught is intercept. Intercept mean the line which cuts the y-axis, the point where beta naught cuts. So here beta naught is, this is basically y-axis, this is x-axis. So in the y-axis you can see this line is cut at this point, and this point is called beta naught, this is called intercept. Okay, and you can predict the value of, this is called, if suppose this is a line, this is a line of this particular equation as it mentioned in this slide, and this is basically slope, this angle theta. If you have used this in mathematics, that y is equal to mc square plus c, y is equal to mx plus c. This is an equation of straight line, y is equal to mx plus c. m was that slope of that particular line. तो यहाँ पर रैंडम एरर आप देखें कि ये रैंडम एरर, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये पॉइंट हुआ क्या. ये बेसिकली ये है कि यहाँ पर सबसे पहले ये जो आप सर्कल्स देख रहे हैं, ब्राउन सर्कल्स, ये वो स्कैटर डायग्राम है. दिस इज बेसिकली अ स्कैटर डायग्राम. जो पॉइंट्स हमें डाटा दिया हुआ था, हमने उन पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया. तो द वेरियस डॉट्स दैट में टर्न अप इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम. उसके बाद हमने इसके ऊपर लाइन फिट की. ठीक है, तो जब लाइन फिट की, तो लाइन जिन पॉइंट्स को टच करके गुजर रही है, तो ये जो लाइन है ये बेस्ट फिट. अब ये लाइन कैसे फिट होगी, हाउ वी दिस फिट दिस लाइन, और इस लाइन को कैसे फिट करते हैं, और कैसे सैंपल डाटा में से हम एस्टिमेट करते हैं. बीटा नॉट को किससे एक्सप्लेन किया जाता है, बीटा 1 को किससे एक्सप्लेन किया जाता है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड्स में आप देखेंगे इंशाल्लाह. तो यहाँ पे इस जनरल पॉपुलेशन के मॉडल को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज रैंडम एरर टर्म एप्सिलॉन आई जो है वो क्या है, रैंडम एरर फॉर दिस एक्स वैल्यू.
ठीक है, ये एरर बताती है लाइन से उस पॉइंट का फासला। ठीक है, और इसके अलावा अब आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं वहां पे क्या है। यस, एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन, वी हैव टू एस्टिमेट, वी विल यूज द सैंपल डाटा। ठीक है, हम सैंपल डाटा को इस्तेमाल करेंगे एंड वी विल फाउंड आउट द वैल्यूज ऑफ बीटा नेट एंड बीटा वन फ्रॉम द सैंपल डाटा। तो जब आप सैंपल डाटा से एस्टिमेट करते हो तो वो हम इसके ऊपर हैट लगा देते हैं। अब ये जो हैट लगा हुआ है ये बेसिकली दिस इज अ फिटेड मॉडल। जब आप बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यूज को फाइंड कर लेते हो तो वी पुट राइट हेयर हैट ऑन द वाई आई, तो हम इसके ऊपर हैट पुट कर देते हैं। इसी तरह बीटा नॉट के ऊपर हैट है एंड बीटा वन के ऊपर हैट है। बेसिकली हैट इस चीज को शो कर रहा है कि ये एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं। तो estimate of regression intercept, estimate of slope, regression coefficient, independent variable, what is y, that is dependent variable। ठीक है, estimate हम करते हैं y को, और उसके साथ अब जब आप इसको estimate कर लेते हो ना, ये इक्वेशन जब फिट करते हो तो our random error terms sums to zero, our random error terms sums to zero। तो so far we have discussed about in statistics we have to face certain variables where we have to find the relationship between variables, understand। अब जब आपने ये कह दिया कि हमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं उसके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना होता है, तो उस रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए वो यूज सर्टन मॉडल्स। तो जो मॉडल हम यूज करते हैं, जब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसके लिए हम मॉडल यूज करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब जब मॉडल को मैंने फिर आगे एक्सप्लेन किया मॉडल कैसे बन रहा है, उसमें एरर टर्म भी साथ होती है। अगर एरर टर्म ना हो तो वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल बन जाएगा। ठीक है, आगे चल के एक एग्जांपल आप देखेंगे जिसमें आप प्राइसेस ऑफ हाउस एंड एरिया ऑफ स्क्वायर फीट, कि एक घर में कितना एरिया का घर हो तो उसकी जो प्राइसेस हैं वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं। यानी प्राइसेस ऑफ हाउस डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस इन स्क्वायर फुट। ठीक है, जितना आप एरिया बढ़ाते जाएंगे घर का तो प्राइस उसके मुताबिक इंक्रीज करेगी। ठीक है, इफ यू आर एबल टू फाउंड अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स देन यू कैन प्रिडिक्ट अबाउट इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में अगर आप एक उधार लेना चाहते हैं और उसमें अगर आपका इतना एरिया है स्क्वायर फीट का तो इतनी कीमत उसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप बताएं कि जरूरी तो नहीं है कि हर दफा जब आप स्क्वायर फुट कहें जी 210 का प्लाट का अगर घर है तो उसकी प्राइस यही होगी। इट इज पॉसिबल, देर आर रैंडम केसेस कि हो सकता है इस बैरियर टाउन में यहाँ पे 200 का 10 का जो घर है उसकी प्राइस ये हो, मॉडल टाउन में ये हो। इसी तरह अगर आप F10 में चले जाएं यहाँ पर 210 का प्लाट जो है उसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो दिस इज नॉट, दिस इज, इट मीन्स अ रैंडम टर्म इज इन्वॉल्व हियर। ठीक है, अगर ये होता ना फिक्स हो जाता कि 210 का जब प्लाट आप लेंगे घर लेंगे तो हर दफा उसकी वैल्यू ये होगी तो ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल हो जाता। बट इट मींस देयर इज अ फ्लक्चुएशन, रैंडमिटी, आपको वेरिएबिलिटी नजर आ रही है। तो इस वेरिएबिलिटी की वजह से ये रैंडम टर्म जो है वो बीच में ऐड हुई है। अब देयर आर सर्टेन अजम्पशंस अबाउट दिस रैंडम टर्म, कि रैंडम टर्म्स में सर्टेन अजम्पशंस क्या है, द सम ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। ये हम अजम्पशन अज्यूम करते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू जीरो। इसीलिए जब हम इसके अगेंस्ट वो हम यूज करते हैं सैंपल का मॉडल तो वो यूज द लेटर्स स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एप्सिलॉन आई वी यूज द वर्ड ई आई, स्मॉल ई आई। हियर यू कैन सी द इंडिविजुअल रैंडम टर्म्स have mean zero. So this basically small ei is representing the epsilon I where its expectation of epsilon I is equal to zero. We know that. ये उसकी assumptions हैं। इसके अलावा एक और assumption है कि expectation of epsilon I, epsilon j यानी two consecutive, if I is equal to j is equal to some sigma square, I is equal to j, and if I is not equal to j this value is equal to 0. So these are the few assumptions for this particular model. ठीक है, now if you are estimating the coefficients
तो आपको कैसे पता चलेगा कि बीटा नॉट की कौन सी वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो और बीटा वन की कौन सी ऐसी वैल्यू हो जो, बिकॉज इफ यू प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन the x-axis and y-axis on the graph, you can make a number of lines, because किसी भी लाइन, स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। अगर 2 पॉइंट्स को आपस में मिला दिया जाए तो स्ट्रेट लाइन बनती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैन बी मेड। अगर आप इतने सारे पॉइंट्स ड्रा करोगे तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैन बी मेड। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन है जो बेस्ट फिटेड है, बेस्ट फिटेड कौन सी लाइन है, तो इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। द क्वेश्चन इज विच लाइन फिट्स द बेस्ट। ये बेसिकली डिफरेंट पॉइंट्स थे जो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर स्कैटर डायग्राम के ऊपर हमने शो कर दिए, उसके बाद हमने इसके ऊपर डिफरेंट लाइंस ड्रॉ की, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको देखिए आप लाइंस को। आई कैन मेक अ नंबर ऑफ लाइंस ऑन दीज पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स को जो टच करके गुजर जाए। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन जो बेस्ट फिट है, तो वी हैव अ सर्टेन मेथड। हमारे पास एक मेथड है जिसको वी कॉल इट अ प्रिंसिपल लीस्ट स्क्वायर मेथड, वी कॉल इट एज अ LS मेथड। व्हाट इज LS मेथड? हियर यू कैन सी, let us compare these 2 lines. The best line is, ठीक है। तो अब आप देखिए the best line is the one that minimizes the sum of the stated vertical differences between the points and the line. अब आप मुझे ये बताएं, सपोज मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं ये वे, तो इन पॉइंट्स के ऊपर मैंने डिफरेंट लाइंस को ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद अब एक लाइन में से और उन पॉइंट में से, लाइन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स हैं और 8 पॉइंट्स जो इंडिविजुअली ऑब्जर्व वैल्यूज के ऊपर शो कर रहे हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल जो होगा, बेसिकली जितना मिनिमाइज करेंगे, बेसिकली अब यहाँ पे वो जो थ्योरी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेस्ट लाइन कैसे पता चलेगा, जो एरर सम ऑफ स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ द स्क्वायर वर्टिकल डिफरेंसेस बिटवीन द पॉइंट्स एंड द लाइन, तो वो जो मिनिमम होगा, जितना मिनिमम होगा तो वो लाइन बेस्ट फिटेड होगी, ठीक है। इस लाइन को देखें, इस लाइन में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया द सम ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस। अब उसने क्या किया, हमारे पास सपोज वैल्यूज हैं 2, 4, 1.5, 3.2 एंड सो ऑन, और हमने 1, 2, 3 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर उसको उसमें से माइनस किया और स्क्वायर ले लिया, और लेने के बाद जब सम ऑफ स्क्वायर किया, सम ऑफ स्क्वायर वैल्यूज किया तो 6.89 आया। वेयर एज अगर हम इस डाटा का मीन ले लें, सपोज ये डाटा ना 2 + 4 + 1.5 + 3.2, 4 वैल्यूज है, 4 के ऊपर ऐड करें तो 2.5 इसका मीन आता है। अब अगर आप इन पॉइंट्स को मीन से डेविएट करें, मीन से माइनस करें और स्क्वायर सम करें तो दैट सम इज 3.99। इससे मुराद ये हुआ कि हमें एक चीज़ यहाँ से हमने देखी, बेसिकली जिसने भी डाल्टन ने बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस करवाया था रिग्रेशन को, तो इन्होंने जब ये लाइंस, ये मॉडल फिट किया तो इस चीज़ को देखा कि कौन सी लाइन जो है बेस्ट फिट होती है, उसका तरीका हाउ वी कैन फाइंड इट। तो उनको फाइंड करने के लिए उन्होंने देखा कि जब मीन से डेविएट किया जाए, जब तमाम ऑब्जर्वेशंस को अपने मीन से डेविएट करके स्क्वायर किया जाए तो वो जो होता है उसके बाद जो सम ऑफ स्क्वायर आता है वो वैल्यू कम देता है। नाउ the smaller the sum of square differences, the better fit of the line to the data। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि जितना आप सम ऑफ स्क्वायर से सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर कम होगा उतनी लाइन अच्छी फिट होगी। इससे मुराद क्या हुआ कि उतनी ही लाइन वो उन पॉइंट्स को टच करके गुजरेगी। तो जाहिर बात है जब वो पॉइंट्स मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करके गुजरेगी जो, तो उतनी ही वो लाइन बेस्ट फिट होगी। तो इसी चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। नाउ हाउ कैन वी फाइंड दीज एस्टिमेटर्स। ये अभी जो मैंने स्टार्ट में स्लाइड में आपको दिखाया था कि बीटा नॉट को हमने एस्टिमेट करना है। फिटेड मॉडल क्या होता है, वाई हैट इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन हैट एच आई। तो ये हमारे पास प्रिडिक्शन मॉडल है या प्रिडिक्शन इक्वेशन है, या इसको हम फिटेड मॉडल भी कहते हैं। वी कॉल इट इज अ फिटेड मॉडल।
ठीक है, क्यों, टेस्ट ऊपर वाई हैट, इसलिए कि बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हुई हैं। अब कैसे फाइंड आउट की हैं, तो इसमें बीटा नॉट के बीटा वन का फार्मूला ये दिया हुआ है, इसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहें वी कैन राइट इट लाइक हिज। माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। तो ये शॉर्ट फार्मूला है, बेसिकली दिस इज जनरल फार्मूला, तो इसको मैंने शॉर्ट किया। बेसिकली यहाँ पे जब आपको डाटा दिया हुआ होगा तो जारी बात है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एक्स और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वाई, ये आपको डाटा दिया होगा। जैसे कि ये हाइट है और वेट है या वाटर लेवल है, दिस इज वाटर लेवल, एंड व्हाट इज दिस, वाई इज कॉल्ड यील्ड ऑफ राइस। ठीक है, तो मे बी वाटर लेवल आप 10 इंचेस रखते हैं तो यील्ड आपकी 1000 और मे बी ये 12 है तो ये यहाँ पर 11 समथिंग आ रही है वैल्यूज की, यहाँ पे फिर आप 10 ले लें और मे बी ये 999 आ रही है एंड सो ऑन। तो दीज आर द वाटर लेवल इन इंचेस और दिस इज द यील्ड ऑफ राइस। तो यहाँ पर एक्स और वाई का डाटा आपको दिया होता है, वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू वेरिएबल्स। इन रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए वी यूज सर्टन मॉडल्स एंड वी यूज सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। जब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात करते हैं तो वी हैव टू एस्टिमेट द पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए दैट इज बीटा नॉट हैट एंड बीटा वन हैट। तो बीटा नॉट हैट और बीटा वन हैट, दीज आर द फार्मूलाज। अब ये फार्मूले कैसे बने इस चीज को आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। ये देखिए LS मेथड, दिस इज कॉल्ड लीस्ट स्क्वेयर मेथड। तो मिनिमाइज द एरर सम ऑफ स्क्वेयर। व्हाट इज एरर, y माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन x। तो दिस इज द एरर टर्म। तो दिस वाज द मॉडल, बेसिकली y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन x एंड एप्सिलॉन I। तो नो व्हाट इज द residual, which we called the sum of the square of the difference between observed value y and the this model। तो अब आप इसको उठा के इधर ले जाए ना, ये वाला पोर्शन जो है इस तरफ ले आए, तो y माइनस बीटा नॉट बीटा वन एक्स साथ आई लगा दें। जनरली हम नहीं लगाते, अंडरस्टूड होता है कि दिस इज वेरिएबल, दिस बेसिकली वाई आई जो शो कर रहा है वेरिएबल को शो कर रहा है। तो इस पोर्शन उठा के आप इस तरफ ले जाएं तो ये चीज़ बन रही है, ठीक है, और ये वैल्यू आती है। अब आप उसके बाद क्या कर रहे हैं, बेसिकली अब उसको उठा के मैं इस तरफ ले गया हूँ, वाई आई माइनस बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई, ठीक है, और दिस इज बेसिकली एप्सिलॉन आई। तो अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप किया है कि दोनों तरफ समेशन अप्लाई कर दी, इधर भी अप्लाई कर दी इधर भी कर दी, ठीक है। उसके बाद आपने सम इधर स्क्वायर ले लिया और इधर भी स्क्वायर लिया। तो दिस इज बेसिकली सम ऑफ द एप्सिलॉन आई स्क्वायर्स। तो y माइनस बीटा नॉट बीटा वन एट्स आई होल स्क्वायर, आई इज फ्रॉम 1 to n ऑब्जर्वेशंस होगी, n पेयर्स ऑफ डाटा होगा, ठीक है। अब हमारे पास मेथड क्या है, या मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कि किसी चीज़ को मिनिमाइज करना हो तो हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद पुट दैट पर्टिकुलर पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो। किसी चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट करते हैं, बट द सेकंड शुड बी नेगेटिव, इट्स वैल्यू शुड बी नेगेटिव। यानी अगर मैं इसको डबल डेरिवेटिव जब लूँ ट्राई स्क्वायर, ये डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा बीटा नॉट स्क्वायर, तो जब इसके ऊपर डबल लूँ ना, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू सम ऑफ एप्सिलॉन आई स्क्वायर, तो दिस वैल्यू शुड बी जीरो, लेस देन जीरो, सॉरी नेगेटिव, ठीक है, दिस वैल्यू शुड बी नेगेटिव जब आप सेकंड डेरिवेटिव ले। तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स से हमने इसको बारो किया है, वहां से कि किसी चीज़ को अगर मिनिमाइज करना हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट करके यू कैन फाइंड द वैल्यूज, बट द सेकंड डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव। तो ये आप इसको करके देखें, जब इसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, ये वैल्यू जो हमारे पास आई है तो दैट शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू देगा ऑलवेज। अच्छा, जब आपने किया क्या, यहाँ पे आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिया, लेने के बाद पुट दिस पर्टिकुलर डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो, बाय डेफिनेशन है ये, दिस मेथड कॉल्स।
तो उसके बाद जब आपने 0 पुट कर दी, ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा। इसमें आप देखिए यहाँ पर n जो है वो कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, इसको आप कॉमन लेके बाहर निकाल दें, इसको भी 0 कर दें, तो यहाँ पे आप बीटा नॉट को एक साइड पे कर लें। तो जब आपने पुट दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज इक्वल टू 0, जैसे ही हम इसको 0 के बराबर पुट करते हैं तो साथ इसके ऊपर हैड डाल देते हैं, बिकॉज इट इज नाउ एस्टिमेटेड। ये बाई डेफिनेशन बात कर रहा हूँ। तो दिस इज बीटा नॉट इज इक्वल टू y बार माइनस बीटा 1 x बार। ठीक है, तो यहां से ये बीटा नॉट की वैल्यू आई है। अब कैसे आई? लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए। ठीक है, ये हो गया y बार माइनस बीटा 1 हैट x बार। अब हम बीटा 1 हैट को कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे हमने जब बीटा नॉट के लिए मालूम करना था तो बीटा नॉट के विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट हमने इसको पार्शियल डेरिवेटिव लिया। अब जब आप बीटा 1 की जरूरत पड़ेगी तो विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1 इसको पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए जरा। यस, तो अब आप देखिए विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर बीटा 1 हमने ले लिया, और बीटा 1 लेने के बाद अब इसको जब बीटा 1 करेंगे तो ये उसके बाद डेरिवेटिव लेने के बाद ये पोजीशन आ रही है। विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1 करेंगे तो बीटा 1 के साथ ये एक्स आई के ऊपर जाएगा ना, ये सारी टर्म्स खुलेंगी ना बेसिकली। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1। तो ये 2 नीचे उतरा, उसके बाद ये समेशन वहीं पे पड़ी हुई है। एक्स आई बीटा 1 के साथ इसका डेरिवेटिव लेंगे, बिकॉज यू नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ 3x या 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम करें तो ये 3 टर्म बाहर चली जाती है, और इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर ओवर करली x विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप इसको डेरिवेटिव ले तो ये आएगा 2x और इनटू करली x ओवर करली x, तो ये दोनों कैंसल, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू x, तो दिस इज 6x। तो यानी कि इसका डेरिवेटिव इफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा करली y ओवर करली x। दिस इज बेसिकली वैल्यू ऑफ करली y। व्हाट इज दिस? 3x स्क्वायर इज y सपोज। ठीक है, तो ये चीज आ रही 3x। तो इसी तरह यहाँ पे आपने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1, तो ये जो x था अब ये x जो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म जो है वो बाहर आ रही है एक्स आई, और डेरिवेटिव जो ऊपर से पावर नीचे उतरी है, उसके बाद डेरिवेटिव हम बीटा 1 का लिया, उसकी कांस्टेंट टर्म जो थी वो बाहर आ गई, और विद रिस्पेक्ट टू करने के बाद ये सिंप्लीफाई करें इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वी फाउंड दिस। तो ये जो चीज है ना एस वाई एक्स वाई, दिस इज कॉल्ड एस वाई एक्स। ये हम जस्ट डिनोट करते हैं फॉर चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। जो फार्मूला शुरू में मैंने बताया था कि एस समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू समेशन वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली ये है। तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था जो हम जनरली यूज करते हैं कि अगर आप इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ ना आपस में x माइनस एक्स बार को और x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार को सिंप्लीफाई करूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद समेशन अप्लाई कर दूँ तो ये फार्मूला सिंपल होकर ये रह जाता है समेशन x इंटू समेशन वाई। एंड डिवाइजर में जो है इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो यू नो दिस कि मैंने ये शायद पहले भी किया हो आपके साथ इस चीज़ को एक्सप्लेन, तो ये आ जाता है ये। अब हमें करना क्या होगा, हमें सिर्फ x और y अगर दिया हुआ है तो हमें एक कॉलम बनाना है एक्स वाई का और एक हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का, तो 2 कॉलम्स हमें बनाने होंगे। जब भी हमें डाटा दिया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा, वी हैव टू फिट द मॉडल। तो मॉडल फिट करने के लिए हमें बीटा नॉट और बीटा 1 की वैल्यूज फाइंड करनी होगी, बीटा नॉट हैट बीटा 1 हैट। ठीक है, उसको मालूम करने के लिए हमें अब देखिए ये फार्मूले में देखिए यहाँ पर हमें y बार चाहिए बीटा नॉट को फाइंड करने के लिए, बिकॉज बीटा नॉट इज इक्वल टू y बार माइनस बीटा 1 हैट x बार। तो इसके लिए हमें y बार चाहिए x बार चाहिए, तो y बार व्हाट इज y बार समेशन y ओवर n एंड व्हाट इज x बार समेशन x ओवर n। ठीक है, तो ये तो यहां से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बीटा 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें समेशन एक्स वाई चाहिए, तो वो समेशन एक्स वाई या डिफरेंट वैल्यूज आने के बाद ये जो नीचे टोटल होगा दैट इज समेशन एक्स वाई। इसी तरह ये जो टोटल आएगा नीचे समेशन वाई बार दैट इज समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो टोटल्स हैं इनको हम यहाँ पे यूज करेंगे इस पॉइंट पर और इधर, और समेशन एक्स और समेशन वाई वी ऑलरेडी नो दिस। ठीक है, तो अब इसको मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे इस मॉडल में पैरामीटर्स को कैसे एस्टिमेट किया जाता है।
ठीक है, हाउ वी एस्टिमेट दिस पैरामीटर्स। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन में रियल एस्टेट एजेंट विशेष, अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एग्जांपल बेसिकली ये है कि एक रियल एस्टेट एजेंट है जो चाहता है टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए हाउस एंड इट्स साइज और सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस, इसके दरमियान रिलेशनशिप मालूम करना चाहता है, बिकॉज ही वांट टू प्रिडिक्ट समथिंग कि अगर आपके घर का ये साइज होगा तो आपकी इतनी प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह आप देखें द प्राइस ऑफ यू कैन से गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो मॉडल के ऊपर डिपेंड करती हैं सपोज। ठीक है, जितना पुराना मॉडल होगा तो गाड़ी की कीमत उतनी कम होगी, और जितना मॉडल अप जा रहा है उतनी ही वैल्यू उसकी बढ़ रही है। बात समझ रहे हैं? तो इफ़ यू आर एबल टू फाइंड आउट बिटवीन दीज टू वैल्यूज़, हमारे पास कुछ पास्ट में हमारे पास एक आ जाए डेटा जिसमें डिफरेंट प्राइसेस दी हुई हों कि गाड़ी का ये मॉडल था तो उसकी प्राइस ये थी, अगर मॉडल ये था तो प्राइस ये थी। इससे मुराद है कि प्राइस डिपेंड कर रही है मॉडल के ऊपर। ठीक है, तो वी कैन प्रिडिक्ट अबाउट फ्यूचर कि अगर गाड़ियों की कीमतें इस तरह बढ़ रही हैं तो वी कैन प्रिडिक्ट अबाउट फ्यूचर। तो बेसिकली रिग्रेशन मॉडल जो है, इसका काम जो है, असल काम जो है वो प्रिडिक्शन है, फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे 10 हाउसेज हैं और इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वाई है, हाउस इन प्राइस है, हाउस ऑफ प्राइस इन $1,000 उसमें दी गई है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो स्क्वायर फीट में है। ठीक है, ये आप देखिए ज़रा, अब हमारे पास ये डाटा है। तो दिस इज बेसिकली अ सिंपल डाटा फॉर हाउस प्राइस मॉडल। इसमें लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ऑफ हाउस इन $1,000 दैट इज 245, इसके साथ आप 3 सिफरों का इजाफा कर दें। ठीक है, तो ये हाउस इतनी होगी, यानी $24,500, और इसका अगर स्क्वायर फीट कितना है 1400 स्क्वायर फीट हो। तो इसी तरह एक और घर है, उसकी प्राइस जो है वो 312 है और उसमें 1600 स्क्वायर फीट है, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं। अगर हमें ये डाटा दिया जाए एंड वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, हमें इनकी नेचर मालूम करनी है। व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल टू दिस पर्टिकुलर डाटा। तो इसको कैसे फिट करते हैं, ठीक है, तो इसको आप देखें। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं ऑनवर्ड लेक्चर्स के अंदर आपको SPSS के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे पास वो फैसिलिटी इस वक्त नहीं है जो मैं आपको दिखा सकता यहाँ पर कि SPSS पे कैसे हम यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ SPSS स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, प्लस इसमें हम इस डाटा को उसमें फीड करके उस मॉडल को ऑलरेडी कैसे फिट करते हैं। यानी जस्ट आपने डाटा फीड करना है, वो हमें फिटेड मॉडल दे देगा, और साथ इसके अलावा अनोवा और रिग्रेशन कुछ और चीज़ें हैं जो टेस्टिंग के बारे में। सपोज हमने चूँकि टेस्टिंग अब पढ़ रखी है, ये इसीलिए मैंने टॉपिक थोड़ा सा डिले में रखा था कि इसकी टेस्टिंग भी हम करेंगे, कि वी विल टेस्ट अबाउट बीटा वन की टेस्टिंग करेंगे। जैसे आपने μ1 की की, μ2 इक्वालिटी टेस्ट किया, σ1 σ2 की, ठीक है, उसके अलावा μ इज इक्वल टू μ0 सम पर्टिकुलर वैल्यू की। इसी तरह हम β1 की टेस्टिंग भी करेंगे, तो वी विल यूज टी टेस्ट राइट देयर। तो अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस मॉडल को अगर आपने फिट करना है तो इसके लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई विल यूज द SPSS लेटर ऑन, बट हियर आई जस्ट राइट फार्मूलाज। इट मीन्स आई हैव क्वेश्चन इज टू फिट अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। क्वेश्चन क्या है इसमें, fit a linear मॉडल। अच्छा, इसको यूं भी कहा जा सकता है, फिट अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, फिट अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल टू द फॉलोइंग डाटा, टू द अब डेटा यू कैन सी ऑन द स्लाइड राइट अपवर्ड। तो अब आप क्या करोगे, इट मीन जब वर्ड यूज करें फिट दिस मॉडल, इससे मुराद अब काम की बात अब आ रही, जो आपने असल काम करना क्या है कि यू विल यूज, कि आपने इसका मतलब ये है कि आपको मॉडल ये फिट करना है y इज इक्वल टू
बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एच, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन है। तो ये बेसिकली पॉपुलेशन मॉडल है। तो जब आप इसको एस्टिमेट करते हो तो ये सैंपल डाटा को यूज करते हो एस्टिमेट करते हैं। इससे मुराद क्या है कि आपने बीटा नॉट हैट की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस बीटा 1 हैट की वैल्यू को फाइंड करना है। इसके फार्मूले यू हैव सीन दिस, आपको बता चुका हूँ मैं फार्मूले से क्या है, कैसे बने वो भी तरीका बता दिया, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स से जरिए बने और इसको क्या है। तो अब आप जब ये मॉडल फिट करना है तो ये वैल्यूज फाइंड करनी है तो यू कैन यूज योर कैलकुलेटर आल्सो। हम इसको SPSS पे भी करेंगे और यू कैन आल्सो यूज योर कैलकुलेटर, ठीक है। तो अब मैं कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके आपको बताऊंगा कि ये मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा इसको। तो सबसे पहले आप देखें कि बीटा नॉट हैट का फार्मूला लिखते हैं। तो दिस इज बेसिकली y बार माइनस बीटा 1 हैट x बार, ठीक है। और व्हाट इज बीटा 1 हैट? दिस इज n समेशन xy माइनस समेशन x इनटू समेशन y और n समेशन h स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। अब आप देखिए आपको जो कॉलम्स दिए हुए थे x और y के, आप स्लाइड पे देखिए। यस, दिस इज बेसिकली x, दिस इज y। तो हमें चाहिए कौन सी वैल्यू? समेशन x चाहिए, समेशन y चाहिए, समेशन x y चाहिए और समेशन एच स्क्वायर चाहिए। इसके अलावा हम y बार हम निकाल सकते हैं जब समेशन x आ जाएगा और समेशन y आएगा। इसी तरह x बार भी हम निकाल सकते हैं जब समेशन x हमें मालूम होगा। तो इससे मुराद यह है कि जब आपको इस तरह का डाटा दिया हो, इफ़ यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आपको एक कॉलम बनाना होगा एक्स वाई का और एक कॉलम आपको बनाना होगा एच स्क्वायर का। अब जब मैं एक्स वाई कह रहा हूं तो एक्स वाई का मुराद है 245 मल्टीप्लाई विद 1400 एंड सो ऑन 312 multiply with 1600 and 279 multiply with 700, 308 multiply with 1875 and so on. You will have to find this, or last value charge 255 multiply with 1700. तो ये हो गया एक्स वाई। और एक्स स्क्वायर से क्या मुराद है कि 1400 का स्क्वायर एंड 1600 का स्क्वायर एंड सो ऑन, सारे मालूम करते जाएंगे। लास्ट क्या है 1700 का स्क्वायर। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप टोटल जब आएगा तो ये जो टोटल आएगा ये वाला, दैट विल बी समेशन एच स्क्वायर एंड दिस टोटल विल बी समेशन एक्स वाई। ठीक है, ये समेशन एक्स वाई होगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। समेशन एक्स यहाँ से आ जाएगा, इसका टोटल करें यहाँ पर तो यहाँ पर समेशन एक्स आएगा। जब इस ला टोटल करेंगे तो दिस विल बी समेशन वाई। अब ये सारा काम मैं कैलकुलेटर के ऊपर कर रहा हूँ, उसका तरीका भी आप नोट कर लें। तरीका ये है कि आप मोड, पहले हमने लास्ट टाइम जो यूज़ किया था दैट वाज मोड SD। अब हमने मोड प्रेस करें और उसके बाद यस, तो 1 2 3 दिया होगा। तो 2 के ऊपर मोड SD दिया हुआ है, ठीक है। 2 के ऊपर क्या है, SD है। तो 3 पे जाएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको अगर नजर आ रहा हो तो रेग्रेशन 3 के ऊपर क्या है, रेग्रेशन। तो 3 को प्रेस किया मैंने, उसके बाद 1 2 3 फिर वो पूछ रहा है लीनियर, लॉर लीनियर एंड एक्सपोनेंशियल। तो लीनियर है दैट इज 1। अब आपने 1 प्रेस किया तो 0 0 आ गया। अब आपने पहला जो पेयर है वो एंटर करना है। हाउ विल यू एंटर दिस पेयर? तो पहली वैल्यू क्या एंटर करेंगे आप, 1400। पहले x की वैल्यू फीड करनी है, उसके बाद y की। पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो 1400 और उसके बाद ये कॉमा यहाँ पे है, इसको देखिए, ये कॉमा को इसको आपने यूज करना है। और साथ y की वैल्यू क्या है 245 और उसके बाद dt मेमोरी में जाके एंटर कर दे। ठीक है,
जी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखें 1600, कॉमा के बाद लिखे एक्स की वैल्यू और 312 मेमोरी। नेक्स्ट वैल्यू क्या है जी 1700, कॉमा 279 मेमोरी। उसके बाद 1875, कॉमा 308 मेमोरी। उसके बाद 1100, कॉमा 199 मेमोरी। उसके बाद 1550, कॉमा के बाद लिखें जी 219 मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 2350, कॉमा के बाद लिखें 405 तो मेमोरी। नेक्स्ट है 2450, कॉमा 324 मेमोरी। उसके बाद है नेक्स्ट 1425, कॉमा 319 मेमोरी। और लास्ट वैल्यू है 1700, कॉमा 255 मेमोरी। ले जी ये डाटा एंटर हो चुका है। अब इसमें यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल। अब देखिए इसमें शिफ्ट ए, यस। अब आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो ये बेसिकली कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट बीटा नॉट और बीटा 1 की वैल्यू देगा। तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज यहां पे लिखता हूं फिलहाल। तो बीटा नॉट हैट की वैल्यू आई है 98.25। इसी तरह बीटा 1 हैट की वैल्यू देखिए क्या आती है। तो शिफ्ट टेस्ट में बी करें तो दैट इज बेसिकली 0.1098। ठीक है, तो ये वैल्यूज आती हैं। अब आप इसको अगर डाटा में एंटर करना चाहें, एक्स बार भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। एक्स बार इसका जो आ रहा है बेसिकली एक्स बार इज इक्वल टू 171.5 और वाई बार क्या है जी 286.5। ये 171.0 है। वैल्यू दे के आइडिया हो गया था कितना बार तो कम होना चाहिए। एक्स बार वाई बार आ गया और समेशन एक्स वाई यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैलकुलेटर पे मैंने डाटा को फीड किया, उसमें से मैंने डायरेक्टली बीटा नॉट और बीटा 1 की वैल्यू फाइंड की। यू कैन आल्सो फाइंड दिस फ्रॉम बाय पुटिंग दिस वैल्यूज ऑफ समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स, समेशन वाई एंड समेशन एक्स स्क्वायर। उस फार्मूला में आप यूज करें। तो अब थोड़ा सा हम इस मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं। अब आप यहाँ पे लाइन देख सकते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा। तो यहाँ पे भी मैंने मॉडल जो फिट किया है, नीचे हाउस प्राइस जो है डिपेंडेंस स्क्वायर फीट के दरमियान। तो दिस इज बेसिकली दिस इज अवर एक्स एंड हाउस प्राइस, दिस इज वाई। और ये व्हाट इज दिस 98 पॉइंट, दिस इज इंटरसेप्ट। ठीक है, अब ये लाइन बेसिकली प्लॉट की गई है। तो जब आप SPSS पे करेंगे तो वहां पे हम उसको प्लॉट का वर्ड यूज करेंगे। तो वो हमसे पूछेगा प्लॉट द लाइन। तो लाइन सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन हम कहेंगे। तो हमें वो ये वेरियस डॉट्स और लाइन जो है बेस्ट फिटेड लाइन जो है। अब देखें कि ये जो लाइन गुजरी है यहाँ पे अब कई लाइंस बन सकती थी ना। यहाँ से लाइन गुजर सकती थी, इस तरफ भी गुजर सकती थी, यूं भी जा सकती है, एक इधर भी जा सकती है। लेकिन कौन सी लाइन बेस्ट फिट है जिसका एरर सम ऑफ स्क्वायर मिनिमम होगा। तो एरर सम ऑफ स्क्वायर मिनिमम किसका होगा, जिसकी लाइन सबसे बेस्ट होगी। तो दिस इज द बेस्ट लाइन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि रैंडम एरर जो है वो कम से कम होगा।
ठीक है, जितना वो पॉइंट लाइन और उस पॉइंट जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं उनके दरमियान जो गैप है वो कम से कम होगा। तो इसीलिए ये जो लाइन थी इसका एरर इनकी ऑब्जर्वेशन से और इस लाइन से जो फासला है वो कम से कम था, तो इसीलिए इस लाइन को बेस्ट फिट कहा गया, लीस्ट स्क्वायर मेथड से हमें पता चला। तो अब आपने देखा कि स्लोप क्या है, तो स्लोप बेसिकली दिस इज टॉर्ड स्लोप। अगर हम इसके ऊपर ये यहाँ पे लगाएं तो दिस इज टॉर्ड थीटा, दिस इज अवर स्लोप, यहाँ पे उसने बना दिया है। तो अब आप देख सकते हैं स्लोप दैट इज 0.0977 इसकी वैल्यू आई है। और ये देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज थी और वाई एक्सिस के ऊपर क्या था, हाउस प्राइस इन $1000 है और दिस इज स्क्वायर फीट ऑफ द हाउस। तो इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पर, हाउस प्राइस मॉडल, स्कैटर प्लॉट एंड रिग्रेशन लाइन। ठीक है जी, तो इसी चीज़ को हमने, ये बेसिकली SPSS पे किया हुआ काम है। तो SPSS पे हम जब करेंगे तो वहाँ पे चीज़ को मज़ीद हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कि ये कैसे ड्रा हुआ। वैसे अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपल प्लॉट किए पॉइंट्स, यानी पहली वैल्यू क्या थी डेटा में 245 और इसके अगेंस्ट वैल्यू 1400 थी। तो 245, अब आप देखिए 245 जो था 1400, तो 1400 कहाँ पे आ रहा है और इसमें 245, ये देखिए इसकी वैल्यू जो था उसको पॉइंट लगा दिया उसने पहला 1400 और यहाँ पे चाहिए 1400 आ रहा है इसमें, इस पॉइंट के ऊपर ये 1400 अगर सपोज इसके अगर हम 5 से करें तो 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यू 1400 जा रही और ये आ गया। और यहां से देखिए ये 245, ये तो आपने एक्स एक्सिस में देखा कि क्या थी वैल्यू 1400, वाई एक्सिस वाली वैल्यू थी 245, तो वहां पर एक डॉट लगा दिया पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू अगर आप देखें तो नेक्स्ट वैल्यू 1600 पे 312 है, तो 1600 के यहाँ पे बनता है और 312, ये देखें ये 312, तो ये वैल्यू बन जाती है ये। ठीक है, उसके बाद ये वेरियस डॉट्स इससे लगाएं और उसके बाद उस लाइन को उसने बेस्ट फिट, ये आपने नहीं करना, ये खुद ही उसको पता है कंप्यूटर को, जो खुद ही करेगा कि बेस्ट फिट किन पॉइंट्स को टच करके जरूरी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस मॉडल को एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये मॉडल हमें क्या बता रहा है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा ये देखें, तो एक्सप्लेनेशन में मैं थोड़ा सा इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर इस चीज इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटरसेप्ट बीटा नॉट। पहले हम बीटा नॉट को इंटरसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं कि बीटा नॉट इज एस्टिमेटेड एवरेज ऑफ वाई व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 हो तो वाई जो है ना मीन उसकी एवरेज वाई की वैल्यू क्या होगी, ये बेसिकली में बताता है। इफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज इन द रेंज ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ एक्स। सपोज अगर एक्स की वैल्यू 0 हो तो वाई की क्या वैल्यू होना चाहिए, बीटा नॉट तो मैं ये बताता है। ठीक है, लेकिन ये इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई घर ऐसा हो जिसमें उसकी घर भी हो और उसमें एरिया भी ना हो, इट इज़ नॉनसेंस। तो यहाँ पे इसको हम एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं कह सकते कि कभी होगा कि कोई घर ऐसा हो जिसमें एरिया होगा ही नहीं और उसकी प्राइस आप कैसे फाइंड करेंगे, तो दिस इज बेसिकली नॉनसेंस। लेकिन आपने जस्ट मैंने सिर्फ बीटा नॉट को एक्सप्लेन कर दिया ना। अच्छा, अब अगर आप कहें कि जी ये यहाँ पर क्यों ऐसे हुआ, अगर आप नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी देखें, एक आदमी जो है नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी और CGPA के दरमियान रिलेशन फाइंड कर ले। सपोज यहाँ पर मैं कहता हूँ दिस इज CGPA एंड दिस इज, ये वेरिएबल जो है नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी है। ठीक है, तो ये भी इट इज पॉसिबल ना कि बंदे ने कुछ भी ना पढ़ा हो लेकिन कुछ नंबर तो ले सकता है ना। तो ये वो नंबर है। सपोज अगर ये आप देखा जाए तो एक्स की वैल्यू अगर कभी 0 हो जाए कि आदमी ने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, और इट इज ए पॉसिबल कि कुछ ना कुछ तो ले जाना, तो ये वो कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, ये बीटा नॉट वो एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर एक्स की वैल्यू 0 हो जाए तो वो वाई की एवरेज वैल्यू क्या है, ये चीज बताता है हमें। ठीक है, तो दिस वाज द वैल्यू। अब आप जरा इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा 1 करते हैं हम। स्लोप इंटरसेप्ट कोफिशिएंट बीटा 1 हैट यहाँ होना चाहिए था।
ठीक है, इसको आप देखें, वही मॉडल है। बीटा वन हैट measures the estimated change in the average value of y for a unit change in x। जब बीटा नॉट बीटा वन हमें क्या बताता है कि अगर x के अंदर 8 यूनिट चेंज हो रहा तो y में क्या चेंज आएगी। अब बात समझ में आ रही है कि x के अंदर अगर 8 यूनिट चेंज हो रहा तो y में क्या चेंज आएगी, ये हमें बताता है बीटा वन। तो अब आप देखें कि अगर हम बीटा वन is equal to 0.010977 है, tells us that the average value of a house increases by, अब चूंकि ये जो वैल्यू ऑफ हाउस है दिस इज बेसिकली इन $1000। वैल्यू ऑफ हाउस क्या है, $1000। जब मैंने स्टार्ट में शुरू में कहा था कि 245 और साथ 3 सिफरे के इजाफा कर ले, यानी 25,000 25 लाख $5,100 उसकी कीमत थी। ठीक है, तो वो उसने 00 तो साथ शो कर दिया ना, यूनिट बता दी उसकी, ये जो यूनिट ऐसी वो $1,000 है। तो इस बीटा वन हमें ये बता रहा है कि अगर आपने 8 स्क्वायर फीट एच की वैल्यू अगर 1 होगी, एच की वैल्यू 1 से मुराद क्या है, अगर 8 स्क्वायर फीट होगा तो हाउस की प्राइस कितने डॉलर होगी, 109.77। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, $109.77। ठीक है, ये डॉलर में निकला हुआ, यानी अगर आप 8 स्क्वायर फीट का धार लेंगे तो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, 109.77। तो एवरेज फॉर ईच एडिशनल स्क्वायर फुट ऑफ, यानी जब भी आप 8 इंच बढ़ेंगे, 8 स्क्वायर फुट आप बढ़ाएंगे तो हाउस की प्राइस में कितना चेंज आएगा, 109.77। तो बीटा वन हैट हमें यह बताता है कि अ यूनिट इंक्रीज इन द वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, 1 unit increase in that particular variable, there will be a change of how changes come in y variable। तो इस चीज को देखिए, यहाँ पर ये मैंने फार्मूले कुछ लिखे थे यहाँ पर। अब इसके साथ ही आई थिंक काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं अब आपके साथ जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से पोर्शन रिलेटेड है, यानी हम we will discuss about the testing of hypothesis regarding these models। ठीक है, in the next lecture we will discuss about testing about beta 1 and also about beta naught। यानी हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा, टेस्ट हाइपोथेसिस दैट द बीटा 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है कि जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी x और y के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसमें हम क्या देखेंगे, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। इस चीज को हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है काफ़ी चीज़ें आपने आज सीखी होंगी। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।